नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ अविनाश जी हैं और इस सेगमेंट है कस्टमर रिव्यू। अविनाश जी पिछले 38 सालों से गाड़ी चलाते हैं और इसके पहले जब इंडिया में थे वो तो चलाते थे होंडा सिविक, लेकिन अब खरीद ली उन्होंने किया कि ये जीटी लाइन जो कि इसका टॉप वेरिएंट है। क्यों खरीदी, वजह क्या रही और इंडिया में वापस आने के बाद एक ऐसी कार उन्होंने क्यों खरीदा ये भी जानेंगे, जो कि अभी आए हुए देश में 2 साल से भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। सब कुछ जानेंगे इनसे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सर, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। थैंक यू सो मच अमित, इट्स सच अ प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू। तो सर सबसे पहले मेरा सवाल है, आपने इसे ही क्यों खरीदा? So Amit ji, see my decision making process in this was basically based on a principle which I actually term it as SPORT, S-P-O-R-T. Let me explain that to you further. See, I've had I've been fortunate enough to have an experience of driving vehicles for the last 38 years. Right, starting from Landmaster, Fiat onwards, till all the new age vehicles. I've driven cars, I've driven premium sedans, I've driven mid SUVs, mid-size SUVs, I've driven full-size SUVs, and for extensive lengths. And so when the time actually came to settle down onto, which is a car that I would really want to settle down with, I decided onto an SUV. And a mid-size segment. The prime reason for that was basically it's easier to maneuver in the city. Full-size SUV is little difficult, although the technology is really advanced. It's easier to maneuver, but it does occupy a lot of space to actually park in the cities, etc., etc. So I thought the best compromise would be a mid-size SUV. So that's one. Then the next filter for me was basically a right price point. Yeah. So कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है. So there is no end to it also. So basically you need to actually see what is the right price point for yourself. For various people these price points can be a lot different. So I needed to see what is the right price point for me. So that's the second filter. The third filter that I was actually looking at was basically the options that actually the vehicle would give me. In normal life, you actually drive in the city, so you have normal modes, economy modes. But at times you do go out on vacations, hill stations, etc. There might be snow, there might be mud, there might be sand. So whether the vehicle actually gives you those kind of options or not, yeah, because the vehicle needs to respond slightly differently. That takes me to the next filter, that the vehicle needs to be extremely responsive to you. Yeah, while you drive, it should be extremely responsive. So that's my next filter. Yeah. At the same time, while all these things are ticked off, the vehicle should be actually really representing today's technology. So it should be technologically advanced. And that's where this vehicle actually really ticked in all the boxes for me. If you look at all the kind of features that it actually offers, probably you would actually get to see in BMW 7 Series.
Those kind of features are available in this vehicle at this price point, and those options are available at this price point. So that is what actually really triggered my thought process and the filtration process to decide on this. सर आप सिंगापुर में थे और वहाँ से यहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो जब आपने यहाँ पर आके गाड़ी देखी, मुझे पता है अगर आप ऐसी ही कोई गाड़ी वहाँ पे देखते हैं तो इसका प्राइस लगभग डबल के आसपास होगा. More than 3 times actually. हाँ, not double. तो आप इसके पहले सिविक चलाते थे, सिविक से आपने ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एंट्री मारी है, तो कुछ लगा नहीं कि आप थोड़ा सा नीचे आ गए? Not at all actually. See, Civic has its own different pleasure to drive, but it's a large sedan. You know, it's a large premium car. I'm actually basically, you know, a person who actually likes speed. Yeah, I'm into a lot of sports as well. So I somehow, you know, feel more comfortable with a SUV or a mid-size SUV, which is and the prime difference between Honda Civic and SUV is basically SUVs are little, you know, the seating is a little higher, whereas Civic and the other cars, the seating is quite low, so it's difficult for you to actually really. So it's a different driving pleasure that you get. सर अगर आप सेल्टॉस ना लेते तो आज आपके पास क्या होती इंडिया में, क्योंकि आपने आके बहुत मेहनत की, यहाँ पे बहुत रिसर्च किया है? Honda Civic होती. तो दोबारा आपका होंडा सिविक होती. इसके साथ ही पूछें कितने में पड़ी आपको ये? This costed me around 20 lakhs on road. कब खरीदी आपने इसे? I bought it in the month of February this year. Okay. लॉकडाउन से ठीक पहले? लॉकडाउन से बिल्कुल पहले, और फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया. So I really didn't get much to drive, but still I managed to drive quite a bit. Yes. ओके, तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने अगर ना लिया होता अपना ये किया सेल्टॉस ना लिया होता, क्योंकि इनको वो सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी पर्सन है और साइकिल करते हैं, रनिंग करते हैं, तो बहुत कुछ एडवेंचर इनकी ज़िंदगी में शामिल है. और किया ने एक एडवेंचर और ऐड कर दिया है, इन्होंने बहुत सारी गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए किया सेल्टॉस का ये GT लाइन लिया है. सच में अलग गाड़ी है. और अब जो कुछ बात करेंगे गाड़ी के अंदर बात करेंगे, तो आइए चलते हैं सर के साथ, करते हैं एक ड्राइव. सर रेडी? Yes, absolutely. Let's go. स्पीड वाला नहीं चाहिए सर, नॉर्मल वाला करवाइए जिससे हम Absolutely, yes. तो आइए दोस्तों चलते हैं गाड़ी के अंदर. तो चलिए अब हम आ गए हैं ड्राइविंग सीट पर, और सर जो है इंडिया में ड्राइव करें. सर इंडिया अच्छा लग रहा है अभी? Oh, I love it. I just love it. इसलिए पूछा क्योंकि आप सिंगापुर में सर रेंटल कार्स भी चलाते थे, तो I really love this. तो चलिए सर आगे बढ़ते रहिए, इसके बारे में हम कुछ जिक्र करते जाएंगे. तो सबसे पहले जिक्र करेंगे आपके अमृतसर ट्रिप का, जो आप बोल रहे थे. तो आप जब हाईवे पे थे, इतने सारी आपने डिस्टेंस लगभग 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर आपने किया, अमृतसर आना जाना हो गया, तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी के साथ, अगर परफॉर्मेंस का जिक्र करें? अरे कार तो बहुत ही स्मूथ चल रही थी. रोड पे हाई स्पीड पे इतनी स्टेबल रहती है गाड़ी, बिल्कुल कभी भी एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल चली गई हो. सो एंड द रोड्स हैव एक्चुअली रियली इम्प्रूव्ड. यहाँ पे इंडिया में रोड्स इतनी इम्प्रूव हो गई हैं, सो ड्राइविंग इज़ रियली अ प्लेजर नाउ. तो जैसे आपने सिंगापुर में चलाया, तो वहाँ पे भी आपने बहुत सारा, क्योंकि ड्राइविंग सेंस वहाँ का अलग है, काफ़ी कुछ अलग है. हालांकि जब आप थाईलैंड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे सब कुछ बहुत कुछ इंडिया जैसा हो जाता है, लेकिन सिंगापुर में भी अभी मैच्योरिटी है. तो वहाँ से यहाँ पे क्या बेसिक फर्क पाते हो आप? So I think adherence to rules, driving rules, sticking to the lanes, that is actually missing in India right now. But as such, otherwise I think there is this awareness जो है लोगों में definitely आ रही है. उसमें ज़रूर बहुत इम्प्रूवमेंट आया है. चलिए सर वापस अपने टॉपिक पे आते हैं. आपका अमृतसर, चलते हैं अमृतसर की तरफ, और इसके मैं हाईवे की परफॉर्मेंस का जिक्र करूँगा. पूछूंगा 5 में से कितने नंबर आप इस गाड़ी को देंगे. मैं हाईवे अगर परफॉर्मेंस का जिक्र कर रहा हूँ तो वहाँ पे ओवरटेकिंग भी है सर, आपकी रफ्तार भी है, जो आपके अंदर भरा हुआ है एडवेंचर वो भी है, तो सबको मिला के आप क्या बोलोगे? Honestly speaking, I want to give it a 5 stars out of 5 stars. बट लेकिन आई रियली डोंट नो इट्स लेकिन उसमें फिर आई थिंक फुल एसयूवीज के लिए नाइंसाफी हो जाएगी, तो आई मे बी प्रॉब्ली गिव इट 4.5 स्टार्स. लेकिन सर आपको पूरा तो चार्म मिल रहा है फुल एसयूवी का, तो एब्सोल्युटली पूरा चार्म मिल रहा है. सो यू शुड वरी अबाउट दैट. एब्सोल्युटली इट इज जस्ट दैट वो उसके लिए नाइंसाफी हो जाएगी फुल एसयूवी के लिए. ओके, तो आपने सर क्या किया, मतलब क्या टच किया था, कौन सी स्पीड टच की, और जो ओवरटेकिंग पे आए तो क्योंकि ये कॉन्फिडेंस ओवरटेकिंग वाला जो है क्या इसमें आपको मिला, क्योंकि अमूमन बहुत सारी गाड़ियों में नहीं होता है.
करेक्ट. सो इसके अंदर जो मेरे को लगा, मैंने आपको जैसे जिक्र भी किया था पहले, कि इसको ड्राइव करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है आपके, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते हैं आप कभी भी. 1 मिनट के लिए भी आप कॉन्फिडेंस, इतना चिपक के चलती है गाड़ी, वेरी स्टेबल. ओके, तो एक चिपक के चलने वाला ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है इंडिया का. जब यहाँ पे गाड़ी बिकती है लोग बोलते हैं चिपक के चलती है. सर माइलेज कितना मिला? प्रिसाइसली इसीलिए मैंने ये जिक्र किया. नहीं, जरूरी है सर, क्योंकि ये चिपक के चलना, 2-3 चीजें यहाँ पे, 2-3 चीजों का सवालों का जवाब मुझे पाना है. कोई पुरानी गाड़ी खरीदने जाता है तो गाड़ी सिर्फ डॉक्टर की होती है, तो उसे देख के लगता है कि सिर्फ डॉक्टर ही पुरानी गाड़ियां बेचता है. ठीक है, 60,000 किलोमीटर डॉक्टर की गाड़ी, और साथ ही चिपक के चलना. तो चिपक का जब जिक्र कर लिया है तो कितना देती है वो भी बता दीजिए. So, इसने मेरे को एवरेज जो दिया हाईवे पे, और देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज एक्चुअली गोइंग एट वेरी हाई स्पीड्स, और मेरा एवरेज वाज ऑन अराउंड 16.7. कंफर्ट की बात करें गाड़ी की तो आपको कंफर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जीटी लाइन के? Oh, very comfortable. I think I have made a right decision to go in for this car. वेरी कंफर्टेबल. सबसे बढ़िया चीज़ तो इसमें मुझे ये लगती है कि जो ड्राइवर सीट है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड. हाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैनुअली, इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिकली. सो सीट इज एक्चुअली लिटिल हाई, सो इट्स ईजियर टू एक्चुअली सी अक्रॉस एंड ड्राइव. मतलब कहने का मतलब है आपको थाई सपोर्ट अच्छा मिल रहा है इस पे. yes, और ये काफी अच्छा रहता है जब आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे होते हैं. तो वापस आते हैं अमृतसर से और पहुंच जाते हैं शहर में. तो शहर में सर यहाँ पे दिक्कत है कि बम्पर टू बम्पर, क्योंकि आप तो जैसे आए लॉकडाउन हो गया, आपने जैसे ही गाड़ी खरीदी, तो अब मुझे नहीं पता आपने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का सामना किया है क्या नहीं किया है. अगर किया है तो वहाँ पर गाड़ी ये किया कैसे परफॉर्म करती है? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट अमित. दिस वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी की the factors while for me to decide onto this particular model, this GTX Plus model. This is a 7-speed DCT model, और ये जो टेक्नोलॉजी है, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, इज अ वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एंड इसके लिए इट एक्चुअली आस्क्स द ड्राइवर टू चेंज देयर ओन ड्राइविंग हैबिट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अब जैसे आपने बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग का जिक्र किया, तो ऐसे केसेस में यू नीड टू बी वेरी केयरफुल हाउ यू एक्चुअली ड्राइव दिस कार. आपको अगर इफ यू आर बिलो अ स्पीड ऑफ से 10 miles per hour or 10 kilometers per hour, then you must actually put it in a neutral. I mean, sorry, when you stop, you must put it in a neutral. You must not actually always ride the clutch. So that's very important. ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है? अगर मैं सेल्टॉस का जिक्र करूं, क्योंकि इसमें मैन्युवरेबिलिटी भी, आपने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है गाड़ी का, आपने कॉर्नरिंग भी की है, तो अगर सिटी में जब चलाते हैं तो वहाँ पे, क्योंकि सिटी यहाँ पे दूसरी तरह का चैलेंज देता है, तो वहाँ पर ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है? जीटी लाइन की बात करें आपके, जो आपने इतने दिन से चलाना शुरू किया है, चला रहे हैं. So मैंने आपसे शायद आई थिंक इन द व्हेन वी स्टार्टेड द डिस्कशन, मैंने आपसे जिक्र किया था एक स्पोर्ट कॉन्सेप्ट का. ठीक है. सो स्पोर्ट कॉन्सेप्ट, इफ यू रिमेंबर, आई हैड एक्चुअली स्पोर्ट. S stands for SUV, P stands for the price point, O stands for the options, R stands for the responsiveness, and T stands for the technology. So we have discussed all that, and the R there is responsiveness. And that is exactly what I say, कि even in city driving or even on a highway, this car is extremely responsive. तो कहीं पे आप, अगर मैं पूछूं सर कि कहीं ऐसी कोई भी जगह हो जहाँ पे आप डिसअपॉइंट हुए हो इसको खरीद के? I really would need to struggle to actually find out. Yes. तो मैं अगर बोलूं सर आप पूरे हैप्पी कस्टमर हैं तो कितना सही रहूंगा? Oh yes indeed, very happy. चलिए अब इसके आगे चलते हैं सर युवा मन पे, क्योंकि आपने तो बहुत सारा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में आपने गाड़ी खरीदी है, तो मैं एक युवा सोच की तरफ चलता हूँ. गैजेट्स कितना यूज करते हो? क्योंकि इसमें एक सर पूरा Vivo आपको मिलता है. Yes. तो उसको आपने कितना एक्सपीरियंस किया? As far as technology is concerned, I am a big fan of technology. I use technology extensively. In fact, I have always challenged myself in every sphere, and I always keep updating myself with respect to today's technology. And hence,
तो मेरे को इसमें एडेप्टेशन में बिल्कुल भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। तो आप यूज करते हो सर ये सारी? आई यूज एवरीथिंग। आप बात करते हो वॉइस कमांड्स पे और ये सब? यस, मैं वॉइस कमांड्स पे बात करता हूँ। इसमें मैं इनफैक्ट आई यूज माई हैंड्स फ्री थ्रू दिस ब्लूटूथ, इसके अंदर जो है, एंड आई यूज अ लॉट ऑफ वॉइस कमांड्स। ये आपको एसी ऑन करना है, एसी ऑफ करना है, वेदर कैसा है, ऑल दैट आई यूज इट। टेक्नोलॉजी इज देयर फॉर यू टू यूज इट। If you don't use technology, then it's necessarily a waste of money that you have actually done. तो सर जो कनेक्टेड कारों के फीचर्स की जो शुरुआत हुई है, तो आपको इसका कितना बड़ा फ्यूचर नजर आता है इंडिया में? क्योंकि ये सिर्फ टॉप वेरिएंट में होते हैं, सारी गाड़ियों के टॉप वेरिएंट में होते हैं, बहुत कम जगह, मतलब एक लिमिटेड कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को मिलता ही नहीं है फैसिलिटी, क्योंकि महंगी पड़ती है टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये कॉस्ट पे आती है। तो अभी क्या दिखता है आपको पूरे इंडिया में? Right. So I think there is a huge scope that there is with the connected cars today. In fact, जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं, most of them are actually connected cars. And the biggest benefit I probably feel from these connected cars is that with respect to your maintenance schedules, आपको कभी भी आपको ये सोचना नहीं पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, सिंपली ऐप खोलो और उसके अंदर आपको पूरा एनालिसिस आ जाता है। आपकी एवरी ट्रिप दैट यू एक्चुअली डू, उसका पूरा एनालिसिस आ जाता है आपके पास। क्या आपकी मैक्सिमम स्पीड थी, क्या एवरेज थी आपकी, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक आप गए। सो इट कैप्चर्स एवरीथिंग। आपके इंजन की परफॉर्मेंस कैसी थी, इट कैप्चर्स एवरीथिंग। सो इट्स, देखो, ये सारी कनेक्टेड कार क्या होता है कि ये आपका डेटा कलेक्ट कर लेता है। सो दिस डेटा इज अवेलेबल टू यू। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ डू यू वांट टू यूज दैट डेटा, वेदर यू वांट टू यूज दैट डेटा और यू डोंट वांट टू यूज दैट डेटा। इफ यू वांट टू यूज दैट डेटा, इट कैन बी रियली यूज्ड। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी मैं गाड़ी हमेशा जब स्विच ऑन करता हूँ तो इट एक्चुअली पॉप्स अप, यहाँ पे मेरे को बताता है कि मेरी सेकंड सर्विस कब ड्यू है, इतने किलोमीटर पे ड्यू है। इट गिव्स मी द डेट एंड इट गिव्स मी द kilometer, like very small things that are there in this vehicle. Like for example, you give a left indicator or you give a right indicator. There are cameras which are available on, under right beneath the side view mirrors on both the sides. There's a camera right in the front, there's a camera at the back, and in this big screen of 10.5 inches screen, it actually gives you a 360-degree view. Yeah, especially. And also whenever you actually put a left turn or you want to take a right turn, और आप इंडिकेटर यहाँ पे जैसे ऑन करते हैं, तो आपको यहाँ पे भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं पर ही सामने आपका इट एक्चुअली राइट क्लिक करेंगे, राइट लिवर दबाएंगे तो ये राइट वाला कैमरा का यहाँ पे आपको पूरा स्क्रीन नज़र आ जाएगा। सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली टर्न, देखना नहीं पड़ेगा आपको क्या है। So it is a right use of technology. You can actually get to see here itself, and you can concentrate right on in the front. Like for example, there is one HUD over here. Now when I actually put this up, अब मेरे को यहाँ पे भी देखने की जरूरत नहीं है। Now it will actually display to me over there कि मैं कितनी स्पीड पे जा रहा हूँ, क्या स्पीड है मेरी, किस डायरेक्शन में आगे मेरे को लेफ्ट लेना है, राइट लेना है। So everything is indicated here itself. I don't have to remove my eyes from the road. So these are all, that is the right use of technology. सर्विस करवाई आपने सर इसकी? मैंने सिर्फ इसकी फर्स्ट सर्विस करवाई है। सो उसमें तो इतना पता नहीं चलता है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। तो सेकंड सर्विस और थर्ड सर्विस हो जाए तो फिर पता चलेगा कि व्हाट इज द काइंड ऑफ रियल, क्योंकि फर्स्ट सर्विस इज ओनली जस्ट मेयर वॉशिंग एंड ऑल, एंड दैट वाज फाइन। वो लोगों ने अच्छे से ट्रीट किया सर्विस सेंटर पे? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट इट्स नॉट ओनली द सर्विस बिट, देयर follow-ups actually after the service is done is extensive. Okay. At times I really get cheesed off कि यार इतना ज़्यादा follow-up क्यों करते हैं। But I believe शायद किया ने शायद काफ़ी प्रेशर डाला हुआ है डीलर्स के ऊपर। Okay. I believe कि Kia does call up customers to cross check how the Kia service centers are provided. नहीं, एक प्रीमियमनेस है जिसको बहुत अच्छे से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कस्टमर को यही सब चीज़ें हैं जो पसंद आती हैं और उसको चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आपने बताया इतना कुछ इसके बारे में। तो दोस्तों, ये था कस्टमर रिव्यू जो कि किया सेल्टॉस GT लाइन का था, और अविनाश भल्ला जी के पैसन को आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने इस गाड़ी को एक्सप्लेन किया, एंड ही इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कस्टमर फॉर सेल्टॉस। अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा सर, मैं गलत हूँ? ऐसे कर दीजिए। तो ये
सिंगापुर से आए और इन्होंने गाड़ी तलाशी और इनको मिल गई सेल्टॉस, और ये खुश होके अपने स्पोर्ट जो एडवेंचर भरा हुआ है इनके अंदर उसको पूरा इस गाड़ी से जी रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये हमारा अलग सा कस्टमर रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर आप कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं मुझसे या अविनाश जी से तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, जवाब पाइए या फिर कमेंट बॉक्स में लिख जाइए, सारे सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा।